Sure. So today we'll start with the module 1 of the EC. That is elements of electrical engineering. We'll start with the first chapter. The first chapter is 50% theoretical and 50% mathematical. Again, two chapters जो हमने लिए थे. That is the AC circuit. That is module number 2, chapter number 2, and three-phase circuit. In that topic, this topic में 70-80% mathematics था, and 20-30% it goes to the theoretical part. This topic is nearly 50-50, 50% theory and 50% mathematical. Okay. Now let's start with the topic. Now this topic is known as the magnetic circuit. The name of the topic is a magnetic circuit. So uske pehle we will see what is a magnet. This is known as the bar magnet. इसको क्या कहते हैं? That is known as the bar magnet. This shape is known as a bar. That's why this is known as a bar magnet. आपने ये मैग्नेट भी देखा होगा, कभी भी पिक्चर्स देखे होंगे. This would look like horseshoe. Horse on the horse, उसके legs पे एक metal का एक iron metal का एक something होता है. So that's why they can run more faster. Okay, the friction get reduced. और उसके पैर को भी damage नहीं. So this would look like horseshoe. This magnet is known as the horseshoe magnet. This is a horseshoe magnet. But in every study, we'll study this bar magnet. So कभी भी science में when we study the magnetism, that time we'll study this bar. So bar magnet में one side is known as the north, and the second side is known as the south, and this part is known as the center. Okay? और ये line है ना, this line is known as magnetic line. Okay, this is passing to the center, north pole and south pole. This is magnetic line from the passing to the center. Now, what is a magnetic flux? The magnetic flux क्या होता है? You see multiple definition. So what is a magnetic flux? See, magnet का job क्या है? To attract any metal. To attract any metal. So यहाँ पे समझो एक metal है. So this magnet will attract the metal. The magnet क्यों attract करता है? Because from this magnet यहाँ से magnetic lines of force travel होते हैं. क्या travel होता है? Magnetic lines of force. तो ये dotted line मतलब these are the imaginary line. ये दिखते नहीं. सिर्फ magnet छोड़ के कुछ दिख नहीं होना. This dotted line known as magnetic lines of force. तो ऐसे travel होते हैं. ठीक है? तो कैसे travel होंगे? This magnetic lines of force travel from north to south outside. Outside the magnet कैसे travel होते हैं? North to south. Inside the magnet कैसे travel होते हैं? South to north. ठीक है? What is the point? Magnetic lines of force travels from north to south outside the magnet and south to north inside the magnet. That is one concept. तो ये magnetic lines of force में, तो this is known as the area. तो अगर magnet के area में कोई metal आ गया, then it will get attracted. ठीक है? अगर एरिया के बाहर होगा, then it will not get attracted. तो एरिया कैसे डिस्कवर करेंगे? एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि जहां तक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल होंगे, दैट एरिया, ओके, उस एरिया के अंदर एनी मेटल गेट अट्रैक्टेड. सो दिस डॉटेड लाइंस आर नोन एज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, इट इज आल्सो नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो देखो, द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स existing in a particular magnetic field is called as a magnetic flux. So in magnetic field, जो कुछ भी line of force है, magnetic lines of force, it is known as a magnetic flux. Simple definition है, the number of line of force existing in a magnetic field, it is known as a magnetic flux. And what is the symbol? Symbol is by phi. This symbol is known as phi, phi, not pi. Pi नहीं, this is pi. इसको कहते हैं pi. Okay, this is phi, phi. So the line of force are also called as the lines of magnetic flux. Okay, what is magnetic flux? It's a magnetic lines of force in a particular magnetic field, represented by phi. And what is the unit? Unit is Weber. Weber is a name of scientist. The scientist का नाम Weber. Short form में कैसे लिखते हैं? Is W. Okay, let's see the next definition. What is our next definition?
देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दिया है, तो दिस इज द मैग्नेट, ये देखा ना हमने, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, नीचे से भी जाते हैं बट वी सी यहाँ पे सिर्फ ऊपर से दिखे, नीचे से भी जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ गया, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ तक गए, इनसाइड कैसे आएंगे, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, सी व्हाट इज द डेंसिटी, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम में कितना मास कवर किया, दैट इज द डेंसिटी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, it is a magnetic flux per unit area in a plane at the right angle to the flux. So what is the formula then? So magnetic flux density क्या है, it is represented by capital V. And what is the formula, magnetic flux upon area, this area sometimes is a capital A, sometimes is small a. So what is the formula, phi upon A. What is phi, magnetic flux, magnetic lines of force, and A is area, ये लाइन ने कितना एरिया कवर किया, this is known as the magnetic flux density. तो ये मैग्नेट है, दिस इज द एरिया, लास्ट लाइन कहां पे, लास्ट लाइन यहाँ पे, दिस इज लास्ट लाइन, तो दिस इज द एरिया। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितने, उसका वैल्यू एंड एरिया, उसका रेशियो लिया, देन इट इज ड्यू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यू शुड राइट दिस डेफिनेशन, दिस फार्मूला, दिस डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, मैग्नेट दिया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिया है, एक रीजन उन्होंने कंसीडर किया है, this is known as cross section area, यहाँ पे एरिया कवर किया, this is plane at angle to the line of force, तो यहाँ से एक प्लेन पास किया, this is known as plane, it is right angle, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो एग्जाम पूछा तो you should get definition, diagram and formula। ठीक है, यूनिट भी दिया नीचे, you should also get unit। तो यूनिट क्या होगा, this is Weber ना, area is meter square, तो Weber per meter square, or it is also known as a Tesla। दो यूनिट है, that is Weber per meter square and Tesla, that is capital T। Okay, second definition is clear. Let's do the third definition. Third one is known as a magnetomotive force, which is MMF, or represented by F. जैसे EMF होता है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, ओम्स लॉ में क्या होता है, V, और we can say EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट है, क्या होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। So what is the definition? The flow of electrons is a current which is basically due to the electromotive force। तो electromotive force क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है, that will create a current। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है, the concept of EMF in terms of magnet, क्या है, the force behind the flow of flux। तो इलेक्ट्रॉन किससे रिप्लेस किया है, फ्लक्स से, और the production of flux, or we can say production of the current in a magnetic circuit is called as magnetomotive force। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यहाँ पे किसका फ्लो, फ्लक्स का, magnetic lines of force का। Okay, so the force behind the flow of flux, तो ये मैग्नेट है, ये फ्लक्स से मूव हो गया ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं ना, आउटसाइड, इनसाइड, साउथ टू नॉर्थ, ये फ्लो हो गया ना फ्लक्स। जैसे ये मैग्नेट, ये मेटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से फ्लो होते हैं, आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा, तो इसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, EMF। यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लक्स कौन करने वाला है, MMF। Okay, this force, the flow of flux is known as magnetomotive force। And what is the formula, N into I, N is number of turns of magnetized coil। मैग्नेट डायरेक्टली नहीं बनता, there is a coil, ऐसे एक मेटल होता है, मेटल, every metal is not magnet। तो अगर उसको मुझे मैग्नेट बनाना है, तो एक मेटल, उसके ऊपर ऐसे कॉइल रोटेट करते हैं, एंड वहां से करंट पास करते हैं। तो every metal is not a magnet, there are some only, iron, cobalt, nickel, इसको छोड़ के others are not metal, others are not magnet। तो कैसे करेंगे, अगर मुझे कॉपर को मैग्नेट बनाना है, तो दिस इज अ कॉपर, उसके ऊपर ऐसे कॉइल लगाएंगे, वायर, उससे करंट फ्लो करेंगे, देन इट विल बिकम मैग्नेट। तो कॉपर को अगर मैग्नेट बनाना है, तो व्हाट इज अ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, कितने कॉइल के टर्न से, यहाँ पे 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, एंड कितना करंट पास किया, दैट इज MMF। N is the number of turns and I is the current flowing through the coil। ठीक है, so it is also known as a driving force behind the magnetic circuit which determine the magnetic field strength। जितना ज्यादा से ज्यादा आप फोर्स लगाते, उतना ज्यादा मैग्नेट स्ट्रांग होगा, जितना आप स्टडी करोगे उतना यू विल स्कोर मोर ना, दैट मच यू विल, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सेम, जितना आप मैग्नेटोमोटिव फोर्स अच्छा दोगे, उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड अच्छा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अच्छा होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज MMF।
एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एमएफ? नेक्स्ट पेज पे गया, दैट इज एम्पियर टर्न्स। क्यों? एमएफ का फॉर्मूला क्या है? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट ना। करंट का क्या यूनिट है? दैट इज एम्पियर, n is number of turns, so ampere turns which is 80, or also known as amperes, मतलब मल्टीपल ना, प्लूरल हो गया, तो amperes, ओके। 80 लिखा मतलब एम्पियर टर्न्स, सिर्फ ए लिखा तो भी चलेगा, बट इट एम्पियर्स। मोस्टली राइट दिस वन, ये लिखो एग्जाम एम्पियर टर्न्स, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन हो गया। लेट्स गो फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेन। ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेन? ये कांसेप्ट लिखिए। लेट्स सी द नेक्स्ट कांसेप्ट। What is a magnetic field strength? Let's see. See definition से पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ मतलब पावर, कि मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H। क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट एंड पोल व्हेन प्लेस एट एनी पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेन एट दैट पॉइंट। सी यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, और यहाँ पे मैंने एक मेटल रखा है। तो ये नॉर्थ पोल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, ड्यू टू दिस फोर्स ये मेटल यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। मोस्टली यहाँ पे होता है आउटसाइड एजेस पे। तो नॉर्थ पोल मेटल के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, साउथ पोल भी रखना फोर्स लगाता है, बट यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया नॉर्थ पोल का। नॉट नेसेसरी कि नॉर्थ पोल ही अट्रैक्ट करे, ऐसे कुछ नहीं, बोथ विल अट्रैक्ट, ओके। तो ये मेटल के ऊपर नॉर्थ पोल कितना फोर्स लगाने वाला है, that will give the value of magnetic field strength. The force expressed by the unit north pole when placed at any point in a magnetic field. Okay, that is known as the magnetic field strength. कि कितना power is used to attract one of the metal. It is also known as a magnetic field intensity. आप बोलते हैं ना कि तेरी पावर कितनी है, तेरी इंटेंसिटी कितनी, तेरी स्ट्रेंथ कितनी है, all three are same. Strength, power, intensity, all are three terms are same. So what is H? H is the ampere turns by length. क्या है? ampere turns by length. तो what is ampere turns? हमने देखा था, that is mmf, mmf ना, that is Na, मतलब यहाँ पे Ni लिखा तो भी चलेगा, this is Ni mostly, right? Ni, not Na, यहाँ पे Ni देखो, Ni, then length, it is length, कितना length उसने कवर किया, length. So it's ampere per length, or we can say newtons per meter. So ampere turns per meter, amperes per length, or A by M. There is a one more unit, newtons per Weber. Okay, you can use any one. It is a Newton turns. यहाँ पे Ni लिखो. So what is the actual formula? It is a Ni upon L, or we can say mmf upon L. So you can use any one. mmf upon L, Ni upon L. And what is the unit? Newtons per Weber. Newton is a capital N, and Weber is WB, and ampere per meter. Okay? Or you can get ampere turns per meter. ये भी चलेगा. This is known as the magnetic field strength. Let's see the next one. So next concept है permeability. थोड़ा सा complex concept है, थोड़ा सा difficult concept है. Still देखते हैं. So permeability ये क्या है देखते हैं. So what is permeability? It is a force exerted by one magnetic pole on the other, depend upon the medium in which the magnetic place. See, so यहाँ पे एक magnet है. This is your first magnet. और यहाँ पे सेकंड मैग्नेट। आपने किया, बचपन में किया था, स्टिल यूर चाइल्ड, तो बचपन में किया था आपने कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से टच करते थे आप लोग, एंड देन पुल करते थे, खींचते थे जोर से, तो दे जस्ट अट्रैक्ट एंड रिपेल, ऐसे होता है। तो हाउ मच फोर्स इज अप्लाई बाय वन मैग्नेट ऑन अनदर? ये मैग्नेट ने, फर्स्ट मैग्नेट ने सेकंड मैग्नेट पे कितना फोर्स लगाया, सेकंड ने फर्स्ट के ऊपर कितना लगाया, ये किसके ऊपर डिपेंड है? मीडियम। आपने किया होगा एक एक्सपेरिमेंट, देखो कैसे। यहाँ पे एक वुडन का टेबल है, दिस इज ये वुडन का टेबल, ठीक है, दिस ये वुडन टेबल, तो आपने इसे घर पे किया होगा। ये वुडन का आपका टेबल है, उसके ऊपर आपने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा और नीचे एक मैग्नेट रखा है। आप नीचे से मैग्नेट मूव करते हो, ऊपर वाले में मूव होता है। अब ये डिपेंड है, ये टेबल वुड का है, प्लास्टिक का है, ग्लास का है, फाइबर का है, डिपेंड किसका है। तो मतलब क्या, इफ यू चेंज द मीडियम तो फोर्स चेंज होगा ना। अगर एयर इज ए मीडियम तो जल्दी अट्रैक्ट होगा, जल्दी रिपेल होगा। अगर वुड होगा, प्लास्टिक होगा, देन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। दैट इज ड्यू टू द परमेबिलिटी। देयर इज अ चेंज इन मीडियम ना, कभी एयर था, कभी वुड, कभी ग्लास, कभी फाइबर, कभी प्लास्टिक। दैट इज नोन एज अ परमेबिलिटी, चेंज इन द मीडियम ना। सो व्हाट इज द परमेबिलिटी?
It is an ability or is with which the magnetic material forces the magnetic flux through the medium. तो जो मीडियम है, ये मीडियम है, वुड, प्लास्टिक, रबर, एयर, वहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है ना. तो दिस एबिलिटी, इसका एबिलिटी है मैग्नेटिक फोर्स का. तो यहाँ पे समझो ये टेबल है और यहाँ पे ग्लास है, दिस इज अ ग्लास. यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट. तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ तक जा रहे हैं. सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. यहाँ पे एयर से ग्लास से जा रहा है, ग्लास टू एयर. तो किसका एबिलिटी है? ये एबिलिटी मैग्नेटिक फोर्सेस का टू ट्रैवल थ्रू द मीडियम. फोर्सेस मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज एबिलिटी और एज, मतलब सिंप्लिसिटी. एज मतलब कितनी इजीली, एबिलिटी और एज विथ व्हिच द मैग्नेटिक मटेरियल forces the magnetic flux through the medium. That is known as permeability, represented by V. It is ऐसे लिखते देखो, U निकालो, नीचे थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करो, दिस इज नोन एज V. कैसे करना है? U ड्रॉ करो, नीचे से थोड़ा एक्सटेंड करो, दिस इज नोन एज V. ठीक. तो अगेन U, सिंप्लिसिटी ऐसे करो, दिस इज V. थोड़ा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा. दिस इज V. ठीक, दिस इज V. इसको क्या कहते हैं? म्यू, MU. ठीक है, क्या बोलते हैं? म्यू. नेक्स्ट, एंड व्हाट इज अ यूनिट? हेनरीज पर मीटर. व्हाट इज यूनिट? हेनरीज पर मीटर. ठीक है, हेनरी किसका यूनिट होता है? इंडक्टर का ना, इंडक्टेंस. चलो नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी. द फर्स्ट परमेबिलिटी इज अ म्यू जीरो, दैट इज नोन द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. दिस इज नोन एज अ म्यू जीरो. यहाँ पे नीचे जीरो ड्रॉ किया ना, इसको कहते हैं म्यू जीरो. तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ वैक्यूम? तो यहाँ पे मीडियम क्या है? दैट इज वैक्यूम. यहाँ पे मीडियम कौन सा यूज किया है? ग्लास, वुड, रबर नहीं. यहाँ पे मीडियम क्या है? वैक्यूम. सो वैक्यूम क्या होता है? दैट इज द नो एयर, लाइक स्पेस, अवकाश, अंतराल. देयर इज नो कॉल्ड एयर. वहां पे एयर नहीं होता. तो जहां पे एयर नहीं है, absence of air, that is called the vacuum or free space. So what is a permeability of free space? It is a B0 upon H. B हमने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पे? जीरो पे, मतलब वैक्यूम में. एंड H जीरो क्यों लिखा? बिकॉज H इसके ऊपर डिपेंड नहीं. H आप ग्लास में लगाओ, नहीं तो H वाटर में देखो, H कुछ भी मीडियम होने दो, H is the same. What is H? It is a magnetic field strength. So for every medium, H is same. But for every medium, B0 change होता है, B change होता है. That's why B के साथ यहाँ पे जीरो है, H के साथ जीरो क्यों है? Because H is same for every medium. तो H ग्लास में देखा, तो रबर में देखा है, प्लास्टिक में देखा है, एयर में देखा है. For every medium, this H magnetic field strength is same. लेकिन B change होगा. B in air, B in plastic, B in glass, B in water, it's changing. तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन है? वैक्यूम का. तो दैट्स व्हाई देयर इज जीरो. तो व्हाट इज द फार्मूला? इट्स अ म्यू जीरो इज इक्वल टू B0 अपॉन H. नेक्स्ट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी. एब्सोल्यूट मतलब एकदम परफेक्ट. ओके, सो फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर मीडियम, यहाँ पे मीडियम स्पेसिफाई नहीं किया, अदर देन वैक्यूम. वैक्यूम छोड़ के जो कुछ भी होगा, दैट इज योर फ्री स्पेस. सो अदर देन वैक्यूम. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर मीडियम, दैट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी to the magnetic field strength. So what is the definition? It is B upon H. देखो यहाँ पे B0 नहीं है, because we don't know what is a medium. So it's a B upon H. ऊपर क्या था? B0 upon H. So finally we can say mu is equal to B upon H. अगर यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे 0 है. बस. ठीक है? यहाँ पे permeability, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है. This is known as absolute permeability. ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक. What is the definition of absolute permeability? It's a normal mu. So for a magnetic field in a particular medium, the ratio of flux density to the magnetic field strength, मतलब B upon H. Okay. Next one, last one is a relative permeability. Relative means relation. It creates a relation. The ratio of flux density produced in a material to the flux density in vacuum by the same magnetic strength under the identical condition is known as a relative permeability. देखो क्या बोला है? रेशियो किसका लेना है? फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन मटेरियल, मतलब ये भी कोई तो भी एक मटेरियल है, उसमें कितना फ्लक्स डेंसिटी, मतलब B, एंड टू द फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, मतलब B0.
बाय द सेम मैग्नेटिक फील्ड स्टेट, तो H दोनों जगह पे सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो व्हाट इज द रिलेटिव परमिबिलिटी? इट क्रिएट्स अ रिलेशन किसके बीच में, μ0 एंड म्यू के बीच, दैट इज B0 अपॉन B। ठीक है, तो लेट्स सी द डेफिनेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज द रेशियो। देखो क्या दिया है, अच्छे से देखो। तो डेफिनेशन में क्या दिया था, रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब म्यू आर। तो व्हाट इज आर? इट इज अ रिलेटिव ना। सो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है, B अपॉन B नॉट, इट इज अ रेशियो ऑफ मीडियम बाय फ्री स्पेस ना। देखो ऊपर से देखो डेफिनेशन, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस इन अ मटेरियल मतलब B, एंड फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम मतलब B नॉट, इसका रेशियो है ना। तो दिस इज म्यू आर। So what is the mu r? It's a B upon B naught. So what is the mu r? It's a B upon B naught. अभी मुझे पता है कि mu क्या है, mu is B upon H, मुझे पता है mu naught क्या है, that is B0 upon H। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला मुझे पता है। तो what is B? B is mu into H। What is B? It is a mu into H। And what is a B naught? It is a mu0 into H। So what is the B? It's mu into H. And what is the B naught or B0? mu0 into H। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो B क्या है? That is a mu H। ये क्या होगा? mu0 H। H गेट कैंसिल, ओके। देखो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो what is B? B is a mu H and B naught is B naught H। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे mu H होगा, B naught H होगा। H गेट कैंसिल, तो what is the final answer? Mu upon mu naught। So what is your mu r? Mu r is mu upon mu naught। So we can say mu is equal to mu naught into mu r। So what is mu? It's a mu naught into mu। खत्म, this is the final answer। तो एग्जाम में अगर ये दिया है तो mu naught दिया, you can find mu r। ठीक है, तो परमिबिलिटी खत्म हो गया। इट इज हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स इज ट्रैवलिंग, इसका एबिलिटी कितना है तो ट्रैवल फ्रॉम मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम, दैट इज नोन एज द परमिबिलिटी। और इसमें तीन कंडीशन देखे, नॉर्मल कोई भी मीडियम से, वैक्यूम स्पेस से, एंड उसका रिलेशन, तीनों देखे, दैट इज म्यू, म्यू नॉट एंड म्यू आर, तीनों देखा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन द परमिबिलिटी और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन परमिबिलिटी। तो तब आपको सब लिखना है, क्या क्या लिखना है, इतिहास की राइट ए शॉर्ट नोट ऑन परमिबिलिटी, तो यहां से स्टार्ट करना है एंड टिल द लास्ट फॉर्मूला, कहां तक, टिल दिस वन, तो यहां तक लिखना है। ठीक है, दिस वन फाइनल। Let's see the next definition. I think this is the last definition. That is reluctance. What is the meaning of reluctance? जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में there is a resistance. Same, there is one concept known as a reluctance. Same, there is one concept known as a reluctance. So what is the reluctance? It is represented by capital S. तो रेजिस्टेंस एंड रिलक्टेंस दोनों से, रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करेगा, अपोज करेगा, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रिलक्टेंस क्या होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, दैट इज अ फ्लक्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, इट इज नोन एज द रिलक्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। एंड क्या फॉर्मूला है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेट का लेंथ कितना है सर्किट का, and inversely proportional to the area of cross section and relative permeability। मतलब क्या है, S is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section मतलब A and relative permeability मतलब mu r। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मुझे इक्वल टू करना है तो क्या बोला था मैंने एक बार कि वहां पे कांस्टेंट ऐड होगा, दैट कांस्टेंट में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। हमने ये भी किया था ना, I is proportional to V, जैसे कहते हैं I is V upon R, R is a constant, यहाँ पे constant डिवाइड होगा, सेम यहाँ पे constant डिवाइड होगा, क्या आएगा, L mu naught mu r and A। तो यहाँ पे constant mu naught, तो what is the constant here, that is mu naught, or we can say mu 0। यहाँ पे constant डिवाइड होगा, एक्चुअल क्या है, S is proportional to L upon mu r A, लेकिन ये प्रोपोर्शनल, मैथमेटिकल सॉल्व करना है तो वी शुड कन्वर्ट इनटू इक्वल टू फॉर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या, दैट इज mu r, mu naught। ठीक है, तो अभी इफ यू सॉल्व इट प्रॉपर्ली
इसका यूनिट क्या होगा? दैट इज एम्पियर टर्न्स पर वेपर. सो यू कैन से 80 अपॉन वेपर, इसका यूनिट. सो व्हाट इज द फाइनल वन? इट इज 80 अपॉन वेपर. ठीक है, सो इट्स 80 अपॉन वेपर. दिस इज द फाइनल. तो रिलक्टेंस क्या होता है? दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो एग्जाम में डेफिनेशन आ सकते हैं. कौन कौन से डेफिनेशन हमने देखे? सो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखा है, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सेकंड डेफिनेशन देखा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. थर्ड डेफिनेशन मैग्नेटोमोटिव फोर्स. फोर्थ देखा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. फिफ्थ वन एक बड़ा वाला सेक्शन देखा, दैट इज परमेबिलिटी. उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, आइदर परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, नेगेटिव परमेबिलिटी. ठीक है, अगर से परमेबिलिटी पूछा तो यू कैन राइट दिस वन. उसके कौन कौन से टाइप्स है? म्यू नॉट, म्यू एंड म्यू आर. ओके, थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख दो. देन लास्ट वन देखा, दैट इज रिलक्टेंस, सिक्स्थ वन. ओके, these are the six definition. इसमें से कोई भी दो आ सकते हैं, बट सब रेडी करके रखो. ओके, चलो. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट का डिफरेंस. यू सी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट तो हमने देखा है एसी सर्किट में, तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. देन उसके बाद मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज पैरेलल होता है, सेम देयर इज अ मैग्नेटिक सर्किट में सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट. इन द सेम लेक्चर नेक्स्ट में वी विल सी द सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट. उसको कंपेयर करेंगे विद द इलेक्ट्रिकल के साथ, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट. ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड पैरेलल. जैसे हमने सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? ऐड होते हैं. तो यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 ऐसे होते हैं. ठीक है, तो we'll see the difference. Then what is the BH curve? Okay, B मतलब magnetic density, magnetic field density और ये magnetic field strength. What is the BH curve? Then देखेंगे Faraday's की law, first, second. Then Lenz law देखेंगे, right hand rule, Fleming का. Then dynamic induced EMF क्या होता है उसमें, static क्या होता है, static induced, उसमें self and mutual क्या होता है, hysteresis loop and hysteresis loss. Then topic is over. ठीक है, theoretical topic है 50% and 50% मैथमेटिकल. जो भी जो फॉर्मूला हमने देखेंगे दैट विल टेक इन दी, तो सम्स इसके उधर हम लेंगे इन दी लास्ट वन. जब टॉपिक खत्म हो जाएगा दैट टाइम विल टेक दिस सम्स. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. तो आज हमने डेफिनेशन देखे सब, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड उसके टाइप्स, सीरीज एंड पैरेलल. ओके, चलो विल स्टॉप हियर. चलो बाय.